Or now let's see this program of switch case which is given in front of your screen. See the program very carefully and try to understand it fully. So let's see it from beginning. Hash include stdio.h for a scanf, printf, then conio.h for getch we are using, then main, then a number we are taking as input, a variable, then CLR SCR. Why do we are putting the CLR SCR? So that the previous output screen can be cleared. Remember that the first statement is declaration statement. This is mandatory. We cannot put anything before declaration. So this CLR SCR comes after declaration statement. We have already seen what is the declaration statement. Then we ask a user that to input a number between 1 and 7. What is this program doing is basically that it is telling the day of the week. If we are giving it in the form of a number, it is giving it in the form of a text. So for case 1, if it is day 1, it is Monday to Tuesday, 3, Wednesday, like this, 7 cases. So these are the 7 cases of switch case. So after every case, we have put a break, because if it becomes true, then all other cases will be executed. And the last case is the default case. इसे हमने कमेंट करा है, अभी कमेंट से हटा देते हैं इसे, डिफॉल्ट केस. तो डिफॉल्ट कब एग्जीक्यूट होता है? जब कोई सा भी केस उसे नहीं मिला पूरे स्विच केस में, तब वो क्या करेगा? डिफॉल्ट केस को एग्जीक्यूट कर देगा. ठीक है, जब कोई सा भी केस उसे नहीं मिला तो क्या करेगा? डिफॉल्ट को एग्जीक्यूट कर देगा. तो अब इसे रन करते हैं. ठीक है, एंटर इन नंबर बिटवीन 1 and 7. सो लेट्स एंटर 5. सो इट विल गिव फ्राइडे, है ना. तो क्या करा उसने? फ्राइडे दे दिया, क्योंकि 1 and 5 के बीच में क्या था भाई, है ना, फ्राइडे था. तो फ्राइडे हमें मिल गया उस चीज से. अब क्या करते हैं? इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करते हैं, चले, है ना. अब हम इस प्रोग्राम में क्या करते हैं? इस डिफॉल्ट को तो ऑलरेडी इसमें ब्रैकेट कली उसमें है ही कमेंट्स में. अब यहाँ पर एक नया डिफॉल्ट बनाते हैं. अब बहुत सी जगह क्या कहते हैं, हम इसे डिफॉल्ट को क्यों बना रहे हैं? यहाँ पर लिख रहे हैं बुक्स में हमेशा डिफॉल्ट लास्ट में लिखा होता है. और एक बड़ा मिसकॉन्सेप्ट होता है कि भाई डिफॉल्ट तो हमेशा लास्ट में आना चाहिए. ऐसा जरूरी नहीं है कि डिफॉल्ट हमेशा लास्ट में ही आए. You can put default anywhere, but sometimes it may give an ambiguous result. Therefore, we put default at the end. If we assume that when all the cases are false, then default will be executed. But you can put it in anywhere in between also. Now, suppose if I put it in between, I save the program. Let's save the program, and then I again run it the program. And this time also I give 5. Now let's see what input does it gives. It gives U. It gives U. Now, why does it is given U? Is now let us run this program once more. We have executed and it gives U. So CLR SCR is there. Okay. Now save program. Alt R. Remember to save a program every time. And now we give an input 5. Now it has given Friday. पिछले केस में इसने U क्यों दे दिया था? तो क्योंकि गलती से हमने 5 से पहले एक माइनस नंबर लगा दिया था. तो उसने कहा भाई -5 तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए उसने डिफॉल्ट वाला आउटपुट दे दिया था. अब हमने 5 फिर से एंटर करा. अब इसने फ्राइडे दिया. अब अगर हम वापस प्रोग्राम को देखें, अब देखो प्रोग्राम को. अब जब हम वापस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो 5 में फ्राइडे ही आता है और फ्राइडे ही प्रिंट करा. डिफॉल्ट पहले लिखा हुआ है, पर तब भी उसने फ्राइडे प्रिंट करा. Why I am trying to explain this thing is, what I am trying to explain this thing, case 1 is checked not found true, case 2 is checked not found true, then case 3 is checked then not found true. तो इसका मतलब ये नहीं कि अब डिफॉल्ट प्रिंट कर देगा, उसके बाद वो केस 4 को चेक करेगा, केस 5 को चेक करेगा. सारे केसेस चेक करने के बाद ही डिफॉल्ट पे जाता है. रिमेंबर दिस थिंग, डिफॉल्ट इज चेक्ड ओनली आफ्टर चेकिंग ऑल द केसेस. सो दिस इज अ सिंपल वे how this switch case works, what is the importance of break, and what is the importance of default. Now suppose if I remove this break from here, let us see what will happen. If I remove this break from here and let's save the file again and let's run the program again. ठीक है, इस केस में से माइनस हटाते हैं सबसे पहले. तो हमने क्या करा, ब्रेक वो हटा दिया था, ब्रेक हटा दिया था. कौन से केस से हटाया था ये याद नहीं आ रहा, शायद 3 से हटाया था. नहीं, 3 से नहीं हटाया. तो पहले वापस देखते हैं किससे हटाया था हमने. 2 से हटाया था. ठीक हो गया. तो एक बार और रन करना पड़ेगा इसे. हमने 2 से हटाया था, ठीक है ना. तो यहाँ पे वैल्यू डालते हैं 2. ठीक,
2 से हमने ब्रेक हटा दिया था। अब 2 से जब हमने ब्रेक हटा दिया तो उसने 2 आउटपुट प्रिंट करा, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। व्हाई इट हैज प्रिंटेड ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ये चीज भी अब आप देखें। 2 से ब्रेक हटा दिया था तो ट्यूसडे टू प्रिंट हो गया, उसके बाद वो 3 पे गया, 3 को भी इसने विदाउट चेकिंग करे ट्रू मान लिया। इट विल नॉट चेक द केस वंस अ केस बिकम्स ट्रू। कोई सा केस अगर ट्रू हो जाता है तो नेक्स्ट केस चेक नहीं करता, इसीलिए ब्रेक लगाया जाता है। अब 3 पे ब्रेक लगा हुआ था तो ट्यूसडे वेडनेसडे प्रिंट करके ब्रेक से बाहर आ गया। बाय चांस यहां पर भी ब्रेक ना लगा होता, ठीक है, यहां पर भी ब्रेक ना लगा होता, तब क्या करता, अब देखते हैं, है ना। ऑल्ट आर, रन, और इनपुट क्या करा हमने, 2। अब देखो, अब इसने क्या करा, हमने वहां से भी ब्रेक हटा दिया था, तो पहले ट्यूसडे प्रिंट करा, फिर वेडनेसडे प्रिंट करा, और उसके बाद डिफॉल्ट में चला गया, क्योंकि उसके लिए तो केस ट्रू हो ही चुका था। तो सीरियल में जो भी नीचे आ रहा था वहां पे चला गया, और डिफॉल्ट में क्योंकि ब्रेक लगा हुआ है इस वजह से वहां से बाहर आ गया। तो जब तक उसे ब्रेक नहीं मिलेगा वो सबको ट्रू मानता चला जाएगा, और जैसे ही ब्रेक मिलेगा वहां से बाहर आ जाएगा। सो दिस इज हाउ अ स्विच केस स्टेटमेंट वर्क्स विथ, ओके।